Assalamu alaikum. Good evening for everyone, and thank you so much for joining us today here. And I'm your host Hunsha Imran, and I'm the doctor of physical therapy. I'm also working as a content writer as a social activist with RCS. As you all know, the topic of our discussion today and our session today is power of time management. I guess this is a topic that really needs to be discussed nowadays, and some proper techniques and tools should be known in order to have a balance in your personal and professional life. So, for this, I have a very, very special guest today here, and I'm very pleased to have her. And it's an honor to have her presence here. So, we have Dr. Lubna Asif in the session today, a very bright name in the medicine, literature, poetry, English, and Urdu poetry as well. I cannot explain how I'm feeling that she's just in front of me, and it's really my pleasure to have her, such a dedicated doctor, a writer, an educationist, and a professionalist, and a columnist, and a motivational speaker, and a gold medalist, a career counselor, poetess, and the list goes on and on. And really, I'm so glad to have such talent with me today for you guys. So she's currently working as a medical officer in Iskandarabad and also as a Sheikh Zayed Hospital. So it's my honor to mention her husband as well, that Dr. Asif Mughal. He's also a specialist doctor, like wow, really, and a great writer with a very legendary personality and a poet as well. He has also written his many books of poetry and English literature. Like it's very strange to have someone with a medical scenario and also a literature background, and she has such an amazing and incredible family background as well, that her father is also an educationist, dean of the university. like मैं इंट्रोडक्शन देती रहूंगी, वो इंट्रोडक्शन इस छोटे से टाइम पे बिल्कुल भी जो है वो समा नहीं सकता। माशाल्लाह हमारे पास इतनी बड़ी शख्सियत है आज हमारे साथ। और हर मदर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजुकेशनिस्ट, एंड शी एज वेल, हर हस्बैंड एज वेल। एंड oh my god, I'm literally like, oh my god, seriously. So she has a literary background as well, like Adim Hashmi, Khalik Qureshi, and Anjum Khalik or Khalanin Kamran. All are her close relatives. These are the big names of Urdu and English literature. So we can say that she is naturally so talented. She has so much talent in her genes as well. Mashallah, mashallah. And her books, and I don't know, I can speak for hours and hours for her. And her books, Divinity Misunderstood and Imprint of My Soul, Neither a Kid nor a Saint, is ready to be published now. Like, how can a doctor can do this? Like, this is insane, to be honest. So the point of appointing her here is that he, someone who is so incredibly talented in her personal life, in her professional life, in her hospitals as well. तो हम ये जानना चाहेंगे कि मैम कैसे, आपने कैसे किया इतने सारे काम, हॉस्पिटल मैनेज करना, घर मैनेज करना, उसके साथ लिटरेचर, ये दो कॉन्ट्ररी चीजें हैं, मेडिसिन और लिटरेचर। उन सबको एक आपने उसको एक लाइन में रखा है, तो किस तरह से रखा हुआ है? सो द टॉपिक इज आवर पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो आई थिंक इनसे अच्छा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि शी इज ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट, और इनका मैट्रिक में टॉप था, इनका एफएससी में भी टॉप था, एमबीबीएस में शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। शी हैज बीन अवार्डेड एज like best doctor, best mother, and best teacher as well, best poetess as well, best writer for prose, and list goes on and on. She also been awarded with the Qaid Azam gold medal, and Shah Latif gold medal. Like I can speak for hours and hours. This is such a a very tiny introduction of her. So ma'am, kindly आप बताएं हमें कि किस the secrets, obviously you have some secrets of time management to do such great things in your life, with obviously having her professional life as well with her, and अपने घर में अपने बच्चों के साथ किस तरह से आपने सब मैनेज किया। और ये आज हम आपसे जानेंगे, आपके जितनी भी टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट्स हम सारे रिवील करने लगे हैं आज। सो यस, सबसे पहले तो मैम,
Thank you so much for coming. Like, thank you so much, and I'm very glad to have you. So let's welcome her in the session. And yes, up to you, ma'am. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you very Welcome. much, organizers of the RCS, for inviting me here. And thank you very much for such a wonderful introduction. Thank you so much. And as you know, you have already told that today we'll discuss about the topic of time management and actually the value of time. You know, time has a pivotal role in our life. It's the most precious thing which anybody can have in life. वो जैसे शायर ने कहा है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गिरदों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी. सो इसमें ये है कि टाइम वो प्रेशियस चीज है कि अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर लें तो दिस इज द रोड टूवर्ड्स सक्सेस. एंड because time is a pivotal thing, everything on the earth rotates around time. And if you are a good time manager, believe me, in this sphere of the universe, you can do whatever you like. और उसके लिए आपको you have to set certain rules and certain simple principles. ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बल्कि ये वही हैं जो आपने खुद बनाने हैं, और ये वही ज़ाब्ते हैं जो खुद खालिक कायनात ने हमारे लिए तजवीज़ कर दिए हैं. बस हमने इन्हें तरतीब देना है, क्योंकि वक्त वो चीज़ है जिसको ना तो रोका जा सकता है, ना आहिस्ता चलने को कहा जा सकता है, और ना ही इसे रिवाइंड किया जा सकता है. हाँ, एक बात है कि वक्त को अपना ताबे किया जा सकता है. वो कैसे? वो इस तरह के गुजरते हुए वक्त के हर लम्हे से फायदा उठाया जाए. लेकिन याद रखिए, ये रूल्स और ये प्रिंसिपल वही हैं जो आप अपनी ईज, अपनी कंफर्ट देखकर बनाएंगे. यानी अपनी कंफर्ट जोन में रहते हुए आप कुछ ऐसे ज़ाब्ते बना लेंगे जिन पर अमल करने से आप अच्छे टाइम मैनेजर, यू कैन बिकम अ गुड टाइम मैनेजर. एंड वंस यू follow these principles, they will be incorporated in your life, in your attitude, in your manner, and in every walk of life. This will help you, and they will help you in the happiness, in the success, and in everything. And one more thing which I would like to tell you, when you follow the time properly, then you can get rid of frustrations, all sorts of worries. कोई emotional disintegration नहीं होंगी, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज, अनस्टेबिलिटी है, वो कभी भी लाइफ में नहीं आएंगी. प्रोवाइडेड इसके लिए ये है कि आपने अपनी टाइम की बहुत अच्छी मैनेजमेंट करनी है. तो उसके लिए हमने छोटे छोटे रूल्स बनाने हैं. मैं एक पहला रूल जो बताती हूँ वो ये है कि सेट योर प्रायोरिटीज. ठीक है, इसमें आपने ये करना है कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली एक सलीका, एक करीना और एक तरतीब का नाम है. इसमें यह है कि आपने अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है. आप देखती हैं ये मुसलसल फैलती हुई कायनात है, लेकिन ये भी वक्त की ताबे है, ये वक्त की कैद में है, और इसका जरा जरा वक्त का पाबंद है. और इसी टाइम मैनेजमेंट से ही जिंदगी का हुस्न और जिंदगी का सारी रनाई, सारा हुस्न और जमाल इसी की वजह से है. लेकिन एक बात याद रखें, डू वर्क बट डू नॉट वर्क लाइक अ मशीन. आपने अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को, अपने फेस्टिवल्स को, एक्सरसाइज को, रेस्ट को, आपने हर चीज को एक प्रॉपर टाइम देना है. जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक आपका कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी. और ये इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम जो है ना मैनेजमेंट, इट इज फेल्ट इन एवरी आवर ऑफ योर लाइफ. और अगर कोई इसके अकॉर्डिंगली काम करेगा तो, लेकिन अपनी तरजीहात सेट करके, सेट योर प्रायोरिटीज, तो वो यकीन करें वो वक्त को काबू कर लेगा. एक्चुअली मैम वेरी वेल एक्सप्लेन, माशाल्लाह माशाल्लाह, हुस्ने बयां के साथ. आई एम रियली मतलब काइंड ऑफ शॉक्ड कि वो कहते हैं ना शगुफ्तगी शरीनी, वो सब आपके लहजे में बिल्कुल लग नहीं रहा कि किसी डॉक्टर से बात हो रही है, क्योंकि यहाँ उर्दू अदब का मुझे लग रहा है कि कोई करिश्मा बैठा हुआ है जो माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें कर रहा है. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस. और बाकी हमें लोगों को आजकल समझ ही नहीं आता कि हमने अपनी प्रायोरिटीज किस तरह से सेट करनी है.
या तो पहली कंफ्यूजन ही यही होती है स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि हमारी प्रायोरिटीज हैं क्या, किस टाइम पे कौन प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो वो कंफ्यूजन प्रायोरिटीज में ही होती है, उसी कंफ्यूजन की वजह से हमें मेजर इश्यूज को फेस करना पड़ता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आती कि इस अगर ये काम है तो इसको कितना टाइम देना चाहिए, इस प्रेजेंट टाइम पे कौन सा काम हमारे लिए पहले करना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं और उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज लाइक प्रायोरिटी नाउ। हम अपनी फॉरवर्ड प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं, लेकिन जो अभी जरूरी होता है उसमें कंफ्यूजन कॉज हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अभी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई। आपने जो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है वो सिर्फ पढ़ाई की है, और उसमें आपने अपनी प्रेफरेंसेस देखनी है। अगर आप वक्त पर तालीम हासिल करेंगे, वक्त पर एग्जाम देंगे, वक्त पर अपनी प्रोफेशनल स्टडीज में एंटर होंगे, और इसके बाद आपको एक खास वक्त पर अपनी जॉब मिल जाएगी। तो प्रायोरिटी सेट करते वक्त आपने प्रेफरेंसेस देखनी है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है और वैल्यू ऑफ टाइम इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, रिसर्च वर्कर्स भी हैं, ऑफिस वर्कर्स भी हैं, इवन हाउस वाइफ भी हैं। एक दफा वो अपना सेट कर लें, अगर वो अपने टाइम टेबल और उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें, तो ये उनको इट वुड बी बेनिफिशियल थ्रू आउट देयर लाइफ। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं वो तो सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक किताबों की दुनिया है जिसमें रहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट ईजी, ये इजीएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जिसमें वो रह रहे हैं। लेकिन वंस यू एंटर इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, फिर एक्चुअली वर्थ ऑफ टाइम जो है वो समझ में आती है, क्योंकि उस वक्त आपने टाइम को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है। जब आपने अपने गोल सेट करने हैं इसके लिए, और उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो होगी दैट इज डिसीजन मेकिंग। देखिए, यू हैव टू सिलेक्ट अ रोड विच लीड्स टू योर डेस्टिनेशन। आपने वो रोड सिलेक्ट कर ली, और देन वो आपकी डेस्टिनेशन तक चलती रहेगी, और जब फाइनली आप उस डिसीजन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप विद इन टाइम अगर डिसीजन नहीं लेते हो, तो फिर आपको मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। यू मे फेस सम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, और बाज़ दफा कुछ सोशल इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपका डिसीजन मेकिंग। बिलीव मी, नो टास्क इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी इफ यू आर अ गुड टाइम मैनेजर। आपने जब डिसाइड कर लिया किसी भी चीज के बारे में, तो इसमें फोरमोस्ट थिंग है डिसीजन मेकिंग। जब आपने डिसीजन मेक कर लिया, देन यू पुट ऑल योर एफर्ट्स, all your energy, all your powers, all your resources to get that decision fulfilled. थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो गई हैं कि हमारे लिए अब सिर्फ पढ़ाई है और कोई चीज़ प्रायोरिटी नहीं है। तो यस मैम, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हम एक टाइम टेबल भी बना लेते हैं, गोल्स भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अच्छी बात आपने की, गोल सेटिंग। यस, यू मस्ट सेट योर गोल्स। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये रिसर्च वर्कर्स के लिए, ऑफिस वर्कर्स, और वो जैसे मैंने कहा इवन फॉर हाउस वाइफ, डोमेस्टिक जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये सारा है। देखिए, आपने अगर अपने गोल सेट कर लिए हैं, देन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपने उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है। और जब आप उस टाइम टेबल के मुताबिक चलते रहेंगे, तो यू डोंट हैव टू फॉरगो योर स्लीप, यू डोंट हैव टू फॉरगो योर एंटरटेनमेंट्स। किसी भी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी कि आज आपने ये चीज छोड़ दी है बिकॉज आपका टाइम में पूरा हुआ। और ये देखें, जब आप टाइम टेबल बनाएं, तो इट शुड बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ लीनियंट टाइम टेबल। ये नहीं है कि बहुत टाइट और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएं। इतना बनाएं कि आपको पता है कि इन दिस आवर्स ऑफ द टाइम यू कैन डू इट। और देखिए, अगर आपने दिन का 1 घंटा भी वेस्ट कर दिया है, तो ये पूरा दिन आप उसकी तलाश में घूमते रहेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू रिकवर दैट आवर। इसलिए लीनियंट से टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक चलते रहें, और कोशिश करें कि उस टाइम में वो आपके सारे काम हो जाएं। और इवन अगर आपने कुछ डेज का टाइम टेबल बनाया है, तो उसमें इतना रखें कि 1-2 दिन एंड में आपके पास बच जाए। उसका ये फायदा होगा कि आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन और एक हैप्पीनेस, एक खुशी महसूस होगी कि हमने वक्त से पहले पूरा कर लिया अपना काम। तो इसमें गोल सेटिंग करते वक्त ये जरूर आपने देखना है कि आपने अपना टाइम टेबल लिया, गोल सेट किया है,
You have to get that goal according to your own circumstances. You don't have to be on the mercy of circumstances, not on the mercies of opportunity. जैसे वो कहते हैं अगर चांस मिल गया तो ये करेंगे, नो, a big no towards it. You have to be determined. और आपकी डिटर्मिनेशन ही है जो आपको गोल सीख करने में हेल्प करेगी, और यही आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज रियली सो मोटिवेटिंग। और मतलब एकदम से जोश सा आ गया ये सुन के कि नहीं, चांसेस नहीं कि चांस मिला तो कर लेंगे, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन अपॉर्चुनिटीज, और रिस्क लेने से ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैम एक और टर्म होती है हमारे पास, मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस है, लेकिन मल्टीटास्किंग किस वक्त, कैसे, और मतलब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मल्टीटास्किंग जो है, इट्स द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द डे। लाइफ इज सो शॉर्ट, यू हैव टू मैनेज ऑल योर, जो भी आपने काम करने हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लें, और इसके बाद प्रायोरिटी वाइज थोड़े से काम, आसान और मुश्किल काम एक साथ कर लें। अच्छा, आपने ये करना है कि जो मुश्किल और आसान काम जो एक वक्त में हो सकते हैं उनको एक वक्त में कर लें। लाइक अगर आप अपनी अलमारी सेट कर रहे हैं, आप अपने वॉइस मैसेजेस उस वक्त सुन सकते हैं, आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, इवन जो हाउसवाइफ्स हैं और किचन में काम कर रही हैं। अब मुझे ये है कि मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना होता था, मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हॉस्पिटल में भी जाना है, मुझे अपने पेशेंट्स भी अटेंड करने हैं, तो मेरे पास ये था कि मुझे क्वालिटी टाइम चाहिए था बच्चों को देने के लिए, नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम। अच्छा, उसमें फिर मैंने ये किया कि बच्चों को, लाइक मैं ड्राइव कर रही हूँ तो बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर तुमसे मैंने कहा चलें जी बुक खोल के जस्ट लाइक ए स्टोरी आपको एक बात बताते जाए, एक कोई कहानी की तरह ये अपना लेसन पढ़ लें। दे वर नॉट फीलिंग कि वो पढ़ाई हो रही है, उनको ये था कि कोई स्टोरी सुनाई जा रही है। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो उनकी जो मेमोराइज कराने वाली चीज, वो इवन मैं खुद रिपीट करती रहती थी। तो मेरे हाउसकीपर बल्कि कहते थे कि मैम आप पढ़ रही हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, यही टाइम है। अच्छा, वो सुनकर वो बच्चों के ज़हन में आ जाता था, मेरा अपना काम हो जाता था, उनकी वो जो उन्होंने मेमोराइज करना है या याद करना है, नेक्स्ट टेस्ट प्रिपेयर करना है। तो दिस इज व्हाट इज मल्टीटास्किंग, और ये दिस इज द बेस्ट थिंग। इसमें ये होता है कि इन दिस शॉर्ट लाइफ यू कैन डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, अगर आपने मल्टीटास्किंग को अप्रोच किया है और आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और इसमें ये है कि हर वक्त आपने, लेकिन आपने पहले सेट कर लेना है कि कौन कौन से 2 या 3 काम एट अ टाइम हो सकते हैं। उसमें एक मेंटल काम हो जाएगा और एक फिजिकल काम, ये कॉम्बिनेशन आपने बनानी है, और इस 2 या 3 कॉम्बिनेशन में भी इजीली ये काम हो सकते हैं। तो समझे, अब आपने क्या किया, आपने दिन, महीना, साल, बल्कि अपनी पूरी उम्र को एक उसने तरतीब दे दी, एक तरतीब के साथ आपने शुरू कर दिया अपना काम। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसके आदी हो जाएंगे, ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होगी, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और मैम सुन के ऐसे लग रहा है कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यस, वी विल आल्सो बी एबल टू डू मल्टीटास्किंग। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस मच क्लियर टू द ऑडियंस एज वेल। देयर इज अ क्वेश्चन मैम कि व्हाट अबाउट समवन जिसने एक प्रॉपर गोल लिस्ट सेट की हुई है कि इस तरह से मैंने एफर्ट करके ये गोल्स अपने अचीव करने हैं, एंड ही विल ऑल्सो अपनी वो पूरी पूरी एफर्ट, जैसे कहते हैं ना, जान लगा दी है, लेकिन वो गोल फिर भी जो है अचीव नहीं हो पाया, और अब देयर इज नो वे बैक, तो वो दोबारा से नए गोल्स सेट करने पड़ेंगे उसे। लेकिन जब गोल्स तब ही अचीव होती है जब आपका उसके अंदर पैशन होता है, तो अब वो दोबारा से किसी और गोल में वो पैशन पुट करना और इस तरह से करना, जैसे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे एम कैट हो गया या आर्मी के डिफरेंट टेस्ट वगैरह हो जाए जो बच्चे नहीं कर पाते, एंड दे इवन दो ट्राई वंस और ट्वाइस और जितनी भी दफा, तो वो दोबारा से उस चीज को छोड़ के एक नया गोल सेट करना अपने लिए, जिसमें आपका ना दिल है ना दिमाग है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो गोल सेट किया है आप एब्रप्टली उस तक पहुंच जाएं। आप, यू हैव टू ट्राई हार्ड। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत सारी कुव्वतें होती हैं जो आपके साथ खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। उसके लिए फिर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम जो है उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर आपको उसकी रेमेडी भी मिल जाएगी।
लेकिन ये वो काम है जो आप अकेले नहीं कर सकते फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें, अपने वालिदैन के पास जाएं, अपने बहन भाइयों से रब्ता करें, अपने टीचर्स से और अपने दोस्तों से। देखिए, एक अच्छा मशवरा, इसमें कभी हिचकिचाहट महसूस ना करें। अगर कहीं भी फेलियर आ रहा है, किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल रही, तो फौरन उसको जाके डिस्कस करें। डिस्कशन से बहुत, यानी आप रहनुमाई लें किसी ना किसी चीज से। जैसे मुझे होता था, मैं अपने बड़ों से, और सबसे मजे की बात बताऊं, मैं छोटों से भी रहनुमाई लेती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी बार दफा मशवरा करती हूँ। वो जो अल्लामा इकबाल फरमा गए, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इसलिए हेजिटेट ना करें, मशवरा लेने में भी और मशवरा देने में भी, क्योंकि जब आप अच्छा मशवरा देंगे तो वो भी एक नेकी है, और ये नेकी पलट कर आपके पास आएगी। तो अगर आपको कहीं फेलियर का सामना है, तो आप फौरी तौर पे किसी से भी, कोई भी जो आपको लगे कि वो बेहतर मशवरा देगा, उससे जाके रब्ता करें, उससे मशवरा करें, उनके एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं लोग पहले कर चुके हैं। तो आपने ये जरूर करना है, ये नहीं कि आपने वही लेके डिप्रेस हो जाना, मायूस हो जाना। मायूसी नहीं करनी है आपने। जिसे फॉर द टाइम बीइंग, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, लॉजिनस डिप्रेशन होगा कि मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल के रखे हुए हैं, और ये कोई ना कोई गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल आवर, आप फौरन जाके किसी ना किसी से राब्ता कायम करें और उनके अच्छे मशवरे पर अमल करें। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। और पंक्चुअलिटी के साथ, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, बट आराम से जाके लोगों से डिसाइड कर लें, मशवरा कर लें। लाइन चेंज करनी हो, वो भी इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, इट्स जस्ट एक बर्डन सा रिलीव हो गया कि नहीं, देयर इज समथिंग एल्स अल्लाह ताला हैव प्लान फॉर अस, और इंशाल्लाह। और मैम, अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि अगर हमने सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ा, तो अब हम किस तरह से करेंगे, अब किस तरह से होगा, कि अगर हमने पहले किसी रीजन की वजह से कोई टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब उसे कैसे कंपनसेट करेंगे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। हम्म बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक बात का इसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि यू डोंट हैव टू एग्जॉस्ट योर एनर्जी ऑन अनप्रॉफिटेबल कामों में। आपने जो कुछ भी है, अपने टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा फ्रूटफुल बनाना है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं नॉन प्रोडक्टिव हॉबीज की तरफ। आपने बहुत ज्यादा गॉसिप नहीं करनी फोन पे, कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी मूवीज नहीं देखनी, बट गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल दिस एंटरटेनमेंट। अच्छा, जब आपने इनको, क्योंकि दिमाग, अब हेल्दी माइंड ऑलवेज लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब आपने अपना काम करना है, तो उसके साथ साथ आपने एंटरटेनमेंट भी करनी है। एक लिमिट तक होनी चाहिए, एक खास लिमिट तक आपने रह के वो एंटरटेनमेंट करनी है। एंड देन द टाइम इज ओवर, तो अपनी स्टडीज, अपनी रिसर्च और अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ आ जाना है। तो आप, सबसे बेहतरीन इसमें है कि आप बुक रीडिंग को टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें। वो आपके नए विस्टा खोल देगा, एक आपका मेंटल होराइजन बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो आप में बहुत से काम करने की एबिलिटी होगी। और उसके लिए वही बात आ जाती है, पंक्चुअलिटी। अगर आप टाइम पे, आपके एग्जाम्स करीब आ गए, आपने वक्त पे शुरू नहीं किया, तो उस वक्त भी, उन हालात में भी जल्दी से अपना टाइम टेबल बनाएं, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बन जाएगा। और उसके बाद आप पंक्चुअलिटी के साथ उसको फॉलो करते रहें। और अपने वीकेंड्स आप एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, शॉपिंग को टाइम दें। वो वेर एवर यू वांट टू गो, कोई एंटरटेनमेंट, कोई जहां मर्जी आप जाके एंजॉय करें। लेकिन ये है कि जब काम का वक्त उस वक्त काम, और जब पढ़ाई का वक्त उस वक्त पढ़ाई, जब खेल का वक्त उस वक्त खेल। 100% इनको टाइम दे। दो तीन चीजें एक साथ नहीं, किया मोबाइल पे भी काम हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, आप खाना भी खा रहे हो। नो, ये चीज नहीं आती है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक काम करें, इसमें आ जाता है इर्तकास। इर्तकाज का मतलब है कंसंट्रेशन विद अ पीस ऑफ माइंड। जब आपने एक काम करना है फुली, अगर आप पढ़ाई के साथ और दूसरे काम कर रहे हो, तो वो बहुत सारा टाइम लगेगा। आप जस्ट गिव 1 आवर टू योर स्टडीज, बेहतरीन उसके रिजल्ट्स आएंगे। इंस्टेड कि आप साथ दूसरे काम भी कर रहे हो, मोबाइल पे भी कर रहे हो, गॉसिपिंग भी कर रहे हो। नो, दैट वॉन्ट वर्क एनी वे। थैंक यू सो मच मैम, मतलब थैंक यू रियली सो मच। ये पूरी एक लाइफ स्टोरी है हर स्टूडेंट की, कि हम कुछ भी शेड्यूल करते हैं, या कोई भी इवन के कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं, हमें जोश में रहता है 1 दिन तक, 2 दिन तक, उसके बाद दोबारा वही रूटीन आ जाती है। लेकिन स्टिल विल गोना ट्राई
मैं खुद भी कि मैं आपकी बातों पे ज़रूर अमल करूँ और एक तरह से बेसिकली ऐसा ही है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स अप कर दिया है। उसी की वज़ह से हमारी टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं होती और हमारी मेंटल हेल्थ भी उसी की वज़ह से ही डिस्टर्ब रहती है जब डेडलाइन्स आ जाती हैं और असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, प्रेज़ेंटेशंस कंप्लीट नहीं होती। और तो मैम आप ये बताएँ कि हम अपनी डेडलाइन्स को किस तरह से मीट करें? देखिए, आपने बहुत सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट देखे होंगे, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। एक पॉइंट उनकी लाइफ में कॉमन है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। उन्होंने टाइम को वैल्यू दी, पंक्चुअलिटी को फॉलो किया और एक टाइम टेबल पे अमल किया। ये ये जो है ना, ये चीज़ है जो उनको एक सक्सेस से रोड पे ले जाता है। तो इसीलिए वक़्त को ज़ाया ना करें। वक़्त का ज़ियान जो है वो सबसे बुरी चीज़ है। ना अपने रिसोर्सेज़, ना अपनी एनर्जी और ना अपना वक़्त ज़ाया करें। आप एक हुस्न तरतीब के साथ इन सारी चीज़ों को लेकर चलें ताकि आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुआशरे के लिए सूरतमंद साबित हो सकें। बात आ जाती है कि आपने जब अपनी तालीम, अपनी सब चीज़ वक़्त पे कर ली है, उसके बाद आप एक सक्सेसफुल लाइफ़ में एंटर हो रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ़। और उस प्रैक्टिकल लाइफ़ में टाइम का जितना रोल है, वो किसी और चीज़ का नहीं है। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थैंक आपने जो शेड्यूल बना लिया है, उसको फ़ॉलो करें, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करते रहें। यस, थैंक यू सो मच मैम। और ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे काम जो हमने सोचा हुआ होता है, अपने माइंड में लिस्टिंग की होती है, हम उसका रिकॉर्ड बनाना भूल जाते हैं। तो व्हाट यू विल से अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग आवर वर्क? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें हर चीज़ का और रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो इस तरह कि जब आपने मे बी नेक्स्ट टाइम रिसर्च वही काम आपने दोबारा करना है, तो अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा, तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ आए थे और उसकी रेमेडी क्या मिली थी। तो आप जब दोबारा वो काम करेंगे दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, अ लॉट ऑफ योर एनर्जी। तो आपको चूँकि वो पता होगा कि स्ट्रैटेजिकली आपने किस तरह उसको फ़ॉलो किया था, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। फिर अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करके रखी हुई हैं, तो वो आपको दूसरों को भी हेल्प करने में मदद देंगी। आपने किसी ने उसी तरह का कोई काम किया है और उसी तरह का चीज़ है, तो रिकॉर्ड से ईज़िली उनको बता सकती हैं। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग में भी टाइम टेबल एक तो बना होगा, फिर आपने एक टू डू की लिस्ट ज़रूर बनानी है और रिकॉर्ड कीपिंग में डेली लिस्ट भी आ जाती है। आपने डेली कामों की लिस्ट बनानी है और जो-जो काम होते जाएँ उसको टिक करना है। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में आपको शेयर करूँगी कि आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट और उसको अपने हॉस्टल के कमरे की दरवाज़े के बैक साइड पे लगा देती थी। और रात को जब वो टिक करने का प्लेज़र होता था ना कि ये काम हो गया है और टिक और सारे काम हो गए हैं, वो इतना प्लेज़र होता था दैट गिव मी अ वेरी यूज्ड टू गिव मी अ वेरी साउंड स्लीप कि आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये डॉक्यूमेंट करें। मैं अपने बच्चों को भी कहती थी कि एक लिस्ट बनाएँ आपने आज क्या काम करने हैं अपने कमरे में हैंग कर दें और रात सोने से पहले टिक कर दें। और इसी तरह अच्छे और बुरे कामों की लिस्ट कि आपने क्या अच्छा किया। तो विदिन अ फ्यू डेज़ वो ये होता था कि अच्छे-अच्छे काम ज़्यादा होते जाते थे और कोई भी ऐसा काम किसी को हर्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, छोटी-छोटी बातें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक तो आपको सैटिस्फैक्शन देता है, दूसरा आपको इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस आपके काम को सेट करने में मदद देता है। जब आपने लिस्ट बनाई अचानक आपको याद आ गया कि ये चीज़ तो मुझे पहले करनी है क्योंकि ये प्रेज़ेंटेशन मेरी नेक्स्ट डे है, ये असाइनमेंट मैंने सबमिट करानी है, तो आपने प्रायोरिटी जल्दी से अपनी लिस्ट में ऊपर-नीचे कर ली, नंबरिंग चेंज कर दी और उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, रिसर्च वर्कर बल्कि हम सबकी लाइफ में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एट टाइम्स यू फॉरगेट समथिंग, आपको भूल जाते हैं कि क्या किया था, फिर आप सोचते रहते हो। तो आपने जल्दी से अपना रिकॉर्ड खोलना है एंड ऑल दीज़ थिंग्स यू कैन ईज़िली सेव इन योर सेल फ़ोन। उसमें आप कर लें। अब ज़रूरी नहीं है यू टेक एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपने सेल में देख लिया, आपने किसी भी वक़्त उसको निकाल के खोल के देख लिया और दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग टर्म। Yeah, thank you so much, ma'am. I can relate with you in the pleasure of just ticking the task के कुछ बहुत से काम ऐसे भी होते हैं कि हम लोग या इवन मैं खुद भी मुझे ये होता है कि मैंने टिक करने हैं तो वो टिक करने का जो मजा होता है ना उसके लिए होता है कि बस जल्दी जल्दी कर ले सो या वो दिस इज अ वेरी अ गुड काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन और आपको पता होता है कि आपने दिन में कुछ किया है कोई काम किया है एटलीस्ट दिन वेस्ट नहीं गया लेकिन मैम बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जब बहुत ज्यादा काम होता है
कि आपको अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को भी जो है कोप अप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन बिल्डअप हो जाती है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी पंक्चुअलिटी कर लो, आप जो है जितनी मर्ज़ी टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, लेकिन वो एक स्ट्रेस वाली कंडीशन जो है वो सेटअप हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि हम स्ट्रेस को किस तरह से एलिमिनेट करें और हमारी क्या कॉपिंग स्किल्स होनी चाहिए? जी हाँ, आपने स्ट्रेस को इस तरह मैनेज करना है कि ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा आपकी टाइम लिमिट में वो काम पूरा नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है, नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट एनी टास्क व्हिच इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी, व्हिच इज़ बियॉन्ड योर पावर और व्हिच इज़ बियॉन्ड योर रिसोर्सेज़। आपने किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डालना कि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इसमें फेलियर आ जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी में एक आ जाता है कि रेस्ट इज़ आल्सो मैंडेटरी फॉर यू। जब आपने एक अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अपने स्ट्रेस को फेस करना है तो आप पहले सबसे पहले आएँगे विद अ फ्रेश माइंड आप दोबारा से सारी चीज़ों को रिव्यू करें। जब आप सारा कुछ करेंगे और आपने इसको अच्छी तरह वर्कअप किया हुआ है, आपने अपनी एंटरटेनमेंट को सब चीज़ों को टाइम दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और कोपिंग के लिए चीज़ है वो है कि आप अपनी डेडलाइन सेट कर लें। और वंस यू मीट योर डेडलाइंस तो आपको एक मोटिवेशनल फोर्स मिलेगी कि इतने टाइम में आई हैव टू कंप्लीट दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। ये दिस इज द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड इट कि आप अपनी अपनी डेडलाइन सेट की और यू आर गोइंग टू मीट दोज डेडलाइंस। जब आपकी वो डेडलाइंस मीट हो जाएंगी तो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। और स्ट्रेस के प्रॉब्लम जो है वो देखिए, अगर स्ट्रेस होगी तो आपका माइंड अच्छा काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी, इवन इट विल बी अप टू योर सोल, आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो इस वजह से अंडर स्ट्रेस कोई काम ना करें। आप कोशिश करें कि उस वक़्त अपने प्रॉब्लम शेयर करें। इसमें फिर फ्रेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। वो फ्रेंड्स ही वो हैं जो आपको गुड फ्रेंड्स, कीप गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, जो आपको इस स्ट्रेस से बाहर ला सकते हैं और आपको एक नया होराइज़न दे सकते हैं कि ये इस तरह नहीं, आप इस तरह काम कर लें। तो इसमें स्ट्रेस इज़िली मैनेज हो सकता है। लेकिन ये नेचुरल होता है फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस व्हेन देयर इज़ सम इवन अ लिटिल फेलियर, कुछ थोड़ा बहुत भी इश्यू आ जाए तो आपको स्ट्रेस आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसा भी अक्सर होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी जो है ना एक्सट्रीम स्ट्रेस पे आके बाहर निकलती है, कि जब वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है तब वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है या क्रिएटिविटी हो जाती है, डेडलाइन से 1-2 घंटा पहले बहुत अच्छी असाइनमेंट बन जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं बनेगी। कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं लोगों के, और उनको वाकई इसी मिसकॉन्सेप्शन पे चलते चलते उनको वाकई ऐसे लगता है कि स्ट्रेस में ही क्रिएटिविटी बाहर आएगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं ये एक टर्म यूज़ करती हूँ, ये एक टर्म यूज़ करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये ना क्राइसिस में काम करने वाले लोग हैं। जब उनका मेंटल स्ट्रेस और क्राइसिस बढ़ जाता है, तो बहुत, अब मुझे देखिए ना, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैंने पेशेंट्स भी देखने होते या हैं, साथ मेरी क्रिएटिविटी भी है। एक बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई अच्छी-सी बात, कोई अच्छा-सा फ़िक्रा ज़हन में आ रहा होता है, कोई अच्छी-सी स्टेटमेंट आ रही होती है। अब वो 2 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। यानी आई एम इन क्राइसिस कि मैं एक पेशेंट देख रही हूँ, उसको मैनेज कर रही हूँ, इमरजेंसी डील कर रही हूँ और उसके साथ कुछ क्रिएटिव मेरे ज़हन में है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जॉट डाउन कर लूँ, अदरवाइज़ इट रिमेन्स इन माय माइंड। अच्छा, वो जैसे ही फिर मैं फारिग होती हूँ, मैं कहती हूँ बजाय टी इंस्टेड ऑफ हैविंग अ टी टाइम, मैं वो अपनी चीज़ें कहीं लिख कर रख लूँ कि इससे पहले कि वो वैनिश हो जाए मेरे दिमाग से। तो इस ऐसे लोग होते हैं जो क्राइसिस में ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा अच्छा अदब भी तभी तख्लीक होता है जब कोई टेंशन, कोई एंग्ज़ायटी, कोई फ़िक्र, कोई मसला होगा, तो तभी अच्छा अदब तख्लीक होगा। अच्छा, इसके लिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको मैं यहाँ मतलब मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रखूँगी, वो है आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस। यू मस्ट बी सेल्फ फोकस्ड। आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आपने अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स रखने हैं यार, और अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी आपने ज़हन में रखने हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे ये होता है कि आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट को इलैबोरेट करना है, उनको बढ़ाना है और जितनी आप में नेगेटिविटी है, कोशिश करके उसको कम से कम करें। और याद रखें, जब आप लोगों से कॉन्टेक्ट में हैं, तो ट्राई टू गिव द पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बताएँ। और अगर आप किसी क्राइसिस की सिचुएशन में हैं, तो एक बात याद रखें कि एवरी क्लाउड
हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे सूरह अत-तकासुर में है कि बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। तंगी के साथ बेशक। ही कोई जो मुश्किल काम है उसके साथ ही आसानियाँ भी हैं। तो आप आसानियाँ ढूँढें, आसानियाँ बाँटें। Every worst situation has something good in it. So try to take out that good out of all that adverse situation and mind it, you will find it out. बाज़ दफ़ा जैसे कुछ हमारी अदबी महफ़िल होती हैं और उसमें किसी ग़ज़ल पे गुफ्तगू हो रही होती है। ठीक है, वो अच्छी ग़ज़ल नहीं है, तो हमारे जो होते हैं क्रिटिक्स वो कहते हैं कि जी कितनी बुरी सी ग़ज़ल लिख दी है, ये क्या है इसमें ये? तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं उसमें से पॉज़िटिविटी कैसे एक्सट्रैक्ट करती हूँ? अब बताएँ कैसे करती हूँ? मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए ये चीज़ अच्छी नहीं थी, आपने इतनी अच्छे तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करके बता दिया कि ये चीज़ इसमें बुरी थी, ये चीज़ इस चीज़ ने इतने सारे एक अच्छे क्रिटिक्स पैदा कर दिए और इन क्रिटिक्स की वजह से इतने सारे जो हैं लोग जो इसके फ़नी महासिन पे गुफ्तगू करके इतना कुछ नया सीख गए हैं। तो डोंट यू थिंक कि इस एक छोटी-सी ग़ज़ल की हल्की-सी गलती से हम सब इतना कुछ सीख रहे हैं। सो देखा ना, हर नेगेटिविटी के साथ एक पॉज़िटिविटी भी है, होती है, बेशक। 100% होती है, लेकिन ये आपकी अवेयरनेस है, आपकी वो इनसाइट है जिसने उस पॉज़िटिविटी को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। और आप जब पॉज़िटिव कैरेक्टर बना लोगे अपना तो यू विल पुट द स्टेम ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑन द अदर, माइंड इट। फिर आपका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। तो अपने पॉज़िटिव पॉइंट हमेशा बढ़ाएँ और नेगेटिविटी को कम से कम रखें। थैंक यू सो मच मैम। और इसी तरह से होता है कि हम कहीं फेल भी हो जाते हैं कि कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग भी नहीं होता, तो उस वक़्त हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, या हमें लगता है कि बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन थोड़ा-सा आगे जाके हमें पता चलता है कि ये दैट्स अ पार्ट ऑफ अल्लाह तालाज़ प्लानिंग, कि अगर ये ना होता तो आज हम यहाँ ना होते। तो एक वो फेलियर भी ना किसी-किसी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट सा आ जाता है। कहीं गिर उठ के खड़ा जो होता है वो वही होता है जो गिरता है। जो गिरता ही नहीं है उसे पता ही नहीं है कि उठ के खड़े होने में क्या कुव्वत है। ये अंदर से बातें आ रही हैं, ये जस्ट आपकी पॉज़िटिविटी है जो मुझ तक पहुँच रही है। थैंक यू सो मच मैम फॉर मेकिंग इट अ वेरी बिग हिट राइट नाउ, और इतनी ज़्यादा मोटिवेशन हर चीज़ से। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये है कि हमने एक टर्म सुनी है 1 और 1 11। तो ये जो टीम वर्क वाला ये एक सीक्रेट है, ये किस तरह से हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो आपने जो शुरू में कहा, तो उसके लिए वो एक बहुत खूबसूरत मिसरा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो बेशक। जो जो जिसने शहसवारी जो घोड़े पे चढ़ा ही नहीं है, तो उसने क्या गिरना? तो इसलिए जब आप काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फेलियर के चांसेस होंगे। अच्छा, अगर टीम वर्क है, इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। टीम वर्क में आपने ये करना है कि अगर आप कहीं ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां आपके पास टीम है, तो एक कोऑर्डिनेशन अपनी टीम से रखें, गुड कोऑर्डिनेशन। आपने अपने सारे वर्कर्स को एक प्रॉपर टाइम देना है और एक डिवीजन ऑफ वर्क उसमें कर देनी है। आपने जब एक काम को डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद जरूरी है कि आप उसको फॉलो बुलाकर उनके टाइम की, उनके लेबर की और उनके हर किस्म के वर्क का एक मैनेजमेंट रखें कि उन्होंने क्या काम किया। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम वर्क में आती है, दैट इज एप्रिसिएशन। एक हल्की सी थपकी, शाबाश का एक जुमला उनमें इतनी मोटिवेशनल पावर उनको प्रोवाइड कर देगा और वो नए सिरे से और एक ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने टीम वर्क करवाना है और आप उसमें हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनसे कोऑर्डिनेटेड रहें, उनसे बाइंडिंग आपकी जेलिंग होनी चाहिए अच्छी। अच्छा, एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ टाइम में, दैट इज नो प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए, इसमें है कि नो पोस्टपोनमेंट टिल टुमारो। आपने अपने टाइम को किसी भी चीज को कल पर नहीं डालना। आई यूज्ड टू से कि आज का काम कल पर ना छोड़ो, बल्कि कल का काम भी आज ही कर लो। अगर आपके पास अवेलेबल टाइम है, तो आने वाले कल का काम भी आप आज ही कर लें और इससे आपको ये फायदा होगा कि नेक्स्ट डे आपको एक नए सिरे से थोड़ा सा काम मिल जाएगा, आपको नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं। और टीम वर्क के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सो मच मैम इसके ऊपर भी रोशनी डालने के लिए। एक और बात है कि हम सारा कुछ करते हैं, हम अपने गोल्स भी सेट करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन खुद को ही असेस करना, इवैल्यूएट करना भूल जाते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट और जो सेल्फ इवैल्यूएशन है, उसको किस तरह से करना चाहिए, उसका पॉजिटिव वे क्या है और उससे हम क्या-क्या सीख सकते हैं? इसके बारे में भी ज़रा आप बताएँ।
जी हाँ, आपने इवैल्यूएट करना है और उसके लिए बेहतरीन टाइम है सोने से पहले। आपने जितना अपने सारे दिन का काम कर लिया है, उसकी एक लिस्ट आपके ज़हन में है, बल्कि आपके पास एक बनी हुई टू डू की लिस्ट है। अच्छा, रात सोने से पहले अपना एहतसाब ज़रूर करें। यही चीज़ आपकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन में काम आएगी। आपने देखना है कि ये ये वो पॉइंट है दैट कम्स टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ योर सोल। आपने सोने से पहले ये देखना है कि आपने अपने जो काम थे वो पूरे कर लिए हैं, कुछ आपने बुरा तो नहीं किया। अगर कुछ अच्छा किया है तो उस पे आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी और एक अच्छी सोच मिलेगी और एक अच्छी नींद आपको मिलेगी। से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपका काम रह गया है, बुरा हो गया तो फ़ौरन उसको अगले दिन में आप डालेंगे और उसको उस तरह मैनेज करेंगे कि वो नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाए। बेस्ट टाइम जो है एंड ऑफ द डे होता है कि आप अपना एहतसाब करें, आप अपने आप को इवैल्यूएट करें और अंडर एस्टिमेट ना करें। अपनी सारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जितनी भी हैं, उनको आप अच्छी तरह सोचें और एक अच्छा रेस्ट लें, हैव अ गुड स्लीप नाइट, ताकि आप सुबह फ्रेश माइंड के साथ उठ सकें और नए सिरे से अपना डे स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस मच सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल। और मैम आपने इतनी सारे हमें पॉइंट्स बताए, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट रूल ऑफ या जो पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट का सबसे जो बड़ा हथियार है वो क्या है? अच्छा, वो तो उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें एक आपको मेंटेनेंस का ख़्याल रखना है। मेंटेनेंस में ये है कि आपने अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, अपनी एनर्जीज़ मेंटेन रखनी है, अपना स्केड्यूल मेंटेन रखना है और अपने इर्द-गिर्द की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़्ड और मेंटेन्ड मैनर में रखना है। वो जब आप एक तरतीब के साथ चीज़ें पड़ी होंगी, तो आपको बहुत ईज़ हो जाएगी। मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए मतलब आपकी एनर्जीज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, उन सब के मेंटेनेंस का ख़्याल रखना है। और अपनी एक्सरसाइज को, अपनी मेडिटेशन को टाइम देना है। इबादत के लिए भी आपने एक वक़्त मुकर्रर करना है, उस टाइम पे इबादत करनी है। मैं अपने बच्चों को जिस तरह कहती हूँ कि ये मैंने एक पोएम लिखी थी लंबी सी, उसका एक लास्ट स्टैन्ज़ा है और वो मैं आप सब बच्चों को डेडिकेट करती हूँ। नेवर माय चाइल्ड बी होपलेस टू प्रे, नेवर माय चाइल्ड बी होपलेस टू प्रे। कि दुआ की ये अहमियत है कि प्रेयर विल क्रिएट वंडर, नेवर डाउट, as long as faith you have in your key. And this is what is key, जो आपके अंदर छुपा हुआ एक खजाना है। आपके अंदर सब कुछ है, सिर्फ आपने उसको बाहर लाना है और उससे फायदा उठाना है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। हमने बहुत सी बातें डिस्कस की, जैसे उसमें प्रायोरिटीज थी, टाइम टेबल की सेटिंग थी, मल्टीटास्किंग थी, फिर इसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अपना स्केड्यूलिंग की, आपकी सेल्फ अवेयरनेस थी, फिर इसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत सारी बातें थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंक्चुअलिटी की, डिसिप्लिन की और टाइम टेबल की और उसके बाद आ जाता है मल्टीटास्किंग। तो ये चीज़ें अगर इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आप रखेंगे ना, तो यू विल ऑलवेज़ लीड अ वेरी, वेरी सक्सेसफुल लाइफ और आपको कहीं भी फ्रस्ट्रेशन या किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी रिलैक्स ऑल द वे। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग इट। इतने सारे पॉइंट्स पे रोशनी डालने के लिए। एट द एंड आपसे एक बहुत ही एक राज मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से टाइम मैनेजमेंट की पावर किस तरह से की। लाइक यू हैव डिड ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ एंड आई एम आल्सो विशिंग फॉर यू कि आगे भी इसी तरह से हो, कि आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज ना रहे। लेकिन स्टिल आपने जो इतना कुछ किया, इतने अवार्ड्स, टॉप्स, गोल्ड मेडलिस्ट होना और फिर लिटरेचर के साथ भी कनेक्टेड रहना, मेडिसिन को, हॉस्पिटल को, पेशेंट्स को, घर को, बच्चों को, सबको टाइम देना। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा ये टाइम मैनेजमेंट के साथ? सिर्फ मेरा ये है कि मैंने एक डेडलाइन ज़रूर हर चीज़ के लिए हमेशा सेट की है। एग्ज़ाम्स होने हैं, यानी जैसे मैंने बोर्ड टॉप किया तो मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। वो ये था कि वो वही स्टडीज़ जो मैंने अपने टाइम टेबल के मुताबिक की, लेकिन रोज़ का काम रोज़। वो कोई चीज़ कल पे टाली नहीं, पूरा काम कर लिया और फुल सैटिस्फैक्शन, फुल एनर्जी के साथ किया। इसी तरह जब मेडिकल के लिए तो ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है एमबीबीएस करने में, और स्पेशली जब आपने स्पेशलाइज़ करना है, तो उस वक़्त भी ये था कि डेली काम करना पड़ता था। सारी स्टडीज़ सब कुछ अपना डेली किया और फिर उसमें थोड़ा आपको टारगेटेड होना पड़ता है। ये बाकायदा एम बनाना पड़ता है कि आपने डिस्टिंक्शन लेनी है, आपने गोल्ड मेडल अचीव करना है।
और उसके मुताबिक फिर हम सब सारे काम होते चले जाते हैं। मैंने अपनी डेडलाइन हमेशा मीट की है, कोशिश की है कि कभी भी कोई काम रह ना जाए, और अगर एक कोई काम रह भी गया तो अपने और टी टाइम या किसी तरह उस तरह के काम में से। फिर हमारे साथ ये होता है कि जहाँ तक आपने डिस्कस किया कि अदबी, जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा क्रिएटिविटी का भी एलिमेंट है। तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट्स आते हैं, वो अपनी बहुत सी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनकी सबकी रेमेडी हमें देनी होती है। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है जो बैकग्राउंड में हमें मिल जाती है, जिस पे हम कोई कहानी, कोई नसर, कोई नज़्म, कोई ना कोई चीज़ हम उस पे लिख लेते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों को, फैमिली को, हस्बैंड को, पेरेंट्स को, हर एक को उनका ड्यू टाइम दिया, और उसके लिए ये नहीं किया कि कोई कट कॉर्नर्स, कोई कट शॉट्स नहीं निकाले, बल्कि पूरे खुलूस के साथ, इवन जॉब भी की है तो उसको इबादत समझ के किया कि हाँ, ये अल्लाह पाक ने ये पेशेंट अगर भेजा है तो इसका रिलीफ मेरे पास है, तो मैं इसको पूरे जज्बे के साथ और खुलूस के साथ इसकी रेमेडीज को दूं। और ये नहीं लिया कि बस टालने वाली बात कभी नहीं की, टाला कभी नहीं है, टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। यस, थैंक यू सो मच मैम। सबसे प्यारी बात यही कि जो भी आप करें उसको इबादत समझ के करें, नियत का सवाब अलहदा मिलता है। और जो उसकी वजह से, जो हमारी वजह से किसी का अगर दर्द खत्म हो रहा है, उसका सवाब अल्लाह ताला हमें अलहदा से देते हैं। तो वैसे भी नियतों का दारोमदार जो है, नेकियों का दारोमदार वो तो नियतों पर ही है। थैंक यू सो मच मैम। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद गौहर अली, कि जब हम एक टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं तो हर कोई टीम मेंबर इतना इंडल्ज नहीं होता उस काम में। तो अगर किसी की मोटिवेशन लो है या इंटरेस्ट लो है, तो उसको डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी टीम मेट की कैसे हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। अगर कोई अच्छा काम नहीं भी कर रहा तो उसकी कोई छोटी सी पॉजिटिव पॉइंट आप छोटा सा लें और उस पर पहले सबसे उसको एप्रिसिएशन करें। ये जो है ना, ये मोटिवेशनल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन। अच्छा, आपने पहले उसको यानी वही वाली बात है, पॉजिटिव पॉइंट पहले। आपने अपनी टीम के सारे मेंबर्स को लिया, आपने देखा है कि एक वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आपने पहले सबसे उसका कोई भी पॉजिटिव पॉइंट लेके उसमें उसको अप्रिशिएट करना है, एक थप्पी। और उसके बाद उसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करने हैं और उसको एक टाइम लिमिट दे देनी है कि देखिए, इसमें आपने ये काम करके और मुझे दिखाना है, और इन सबसे पहले दिखाना है। और मेरे पास ये होता था, मेरे पास अगर कोई लेट कमर्स, यानी मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसमें से लेट कमर है, तो मैं उसकी ड्यूटी लगा देती थी कि उसने सबकी रोल कॉल मेंटेन करनी है। अब ऑब्वियसली ही हैज टू कम अर्ली, उसने सबसे पहले आगे और सबकी रोल कॉल लेनी है। और वो, तो आप कोई उसमें खुद अपनी इंटेलिजेंस के साथ ऐसी रेमेडी निकालें कि वो उस तरफ मोटिवेट हो और उस काम की तरफ वो आ जाए। और थोड़ा सा इसमें आपको 2 मिनट उस पर स्पेंड करने पड़ेंगे, उसकी थोड़ी सी साइकी के बारे में जानना होगा। मे बी वो उस काम के लिए फिट ना हो, वो बोरियत से काम कर रहा हो, तो उसकी थोड़ी सी इंटरेस्ट डेवलप करें कि आप जब तक इस जॉब में हैं, इस काम में हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इस कंपनी में हैं, तो इसकी बेनिफिट के लिए आप ये काम करें, क्योंकि आपको इसका इंसेंटिव मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट होगी। Thank you so much, ma'am. Your words really made my day or make my heart smile. ऑलरेडी आप हमें डेडिकेट कर चुकी हैं, लेकिन स्टिल मैं आपसे कहूंगी कि आपकी लिखी हुई कोई लाइन या कोई शेर जो आप ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहें या कुछ कहना चाहें, क्योंकि एक वसी दरिया है आपके पास इल्म का, तो वो जितना भी मिले तो मुझे तो कम ही लग रहा है आज। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं असल में नसर भी लिखती हूँ, नज़्म भी, गज़ल, हर चीज़, यानी हर सिनफ़े सुख़न में कोशिश की है। लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च वर्कर हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, किताबों की दुनिया में रहते हैं, तो आपने अचानक एक सवाल कर दिया है। तो उसके लिए मुझे याद आ रहा है कि एक ज़माने में मैंने स्कूल के बच्चों के लिए एक छोटी-सी नज़्म लिखी थी, छोटी-सी नहीं, तवील नज़्म थी। उसके चंद शेर जो मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं फिर आप सबको डेडिकेट करती हूँ। उसमें ये है, ज़िंदगी सर धुने यूँ बिताओ इसे, ज़िंदगी सर धुने यूँ बिताओ इसे, खेल ही खेल में मत गँवाओ इसे। रोशनी 7 रंगों की मोहताज है, रोशनी 7 रंगों की मोहताज है, जिसका एक आलमे निस्फ़ पर राज है। कोई अपने हदफ को भुलाए तो क्यों, राह को राह में छोड़ जाए तो क्यों, फ़िक्र को लम्हा-लम्हा जिला चाहिए,
और अमल भी अमल से सिवा चाहिए, और आदमी को जरूरी है इंसान बने, रूहे मिल्लत बने, कौम की जान बने, दूसरों के सदा काम आता रहे, जख्म खाकर भी हाँ मुस्कुराता रहे। और एक आखिरी शेर आप सबको डेडिकेट करती हूँ कि हुक्मे शाहे उमम से ना गाफिल रहो, हुक्मे शाहे उमम से ना गाफिल रहो, महत से लहद तक इल्म हासिल करो, महत से लहद तक इल्म हासिल करो। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब सिर्फ आप शायरी लिखती नहीं है, करती नहीं है, माशाल्लाह आपका अंदाज़े बयां भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी मुशायरे में मैं बैठी हुई हूँ और लिटरली ऐसी फील आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। आई एम सो ग्लैड कि आई मेट यू। आई रियली केम टू इन फ्रंट ऑफ यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस सुन के, और इतनी प्यारी प्यारी नज़्में, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के। थैंक यू सो मच फॉर having us, not we are not having you there, you are having us here। अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, that's a very big deal for us and this means a lot। और yes, अब over to you मुंतहा, कि मैम के लिए थैंक यू जो वेरी है, थैंक यू नोट के लिए, या मुंतहा over to you। Thank you so very much, Dr. Lubna, for accepting our invitation and giving us hour from your busy schedule. We are really humbled. Thank you so very much. और इतनी प्यारी नज्म, इतनी प्यारी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ की, आपने कहा हेल्थी माइंड हैज हेल्थी बॉडी। फॉर श्योर व्हेन यू आर मैनेजिंग योर टाइम वेल इन फ्रेम, उससे आपको स्ट्रेस, टेंशन और ओवर थिंकिंग नहीं होगी। लेट्स से अगर हम, क्योंकि हमारे पास यॉन्ड्रा, हमारे पास यंग स्टूडेंट्स का है, तो लेट्स से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो जब हम उनको असाइनमेंट मिलती है, अगर वो टाइमली उसको बिफोर हैंड कर लेते हैं, बजाय उसको लिंगर ऑन करें 11th आवर के लिए, तो इट श्योरली रिड्यूसेस द स्ट्रेस और डेफिनेटली इट हेल्प्स इन, इट बेनिफिट्स देयर हेल्थ। क्योंकि टाइम और स्ट्रेस इज रिलेटेड टू ईच अदर। जितना कम हमारे पास टाइम होता है, उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होता है टू मीट द डेडलाइंस। So all in all, conclusion is like, once we value the time, everything is under control, our health, our lifestyle, and our dealings. And thank you, ma'am, and thank you so much to our precious audience for staying with us. I hope you got to learn a lot new things from this, और आप लोगों के सवाल भी बहुत अच्छी तरह डॉक्टर लुबना ने cater कर दिए होंगे। So stay in touch with RCS for a lot more informative sessions. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz for today's session. Thank you so much everyone।